Okay, so good afternoon, students. My name is Ankar Kukriti, and we'll begin with the class of SPSS. In my previous lecture, we talked about data cleaning, and in my very first video, we talked about introduction to SPSS. So today we'll be talking little bit about research, and then we will move on to the T test. That is the very first test, and in between that test only, I'll even tell you about how do we formulate a hypothesis and what is F test that is associated within T test itself, what is the P value, and why it is, next to impossible to conduct a Z test in SPSS. So basically we'll cover T test in detail, and then I'll give you just a glimpse of F test and the P value, and then I'll tell you why it is impossible to conduct Z test in SPSS. So first of all, let me give you little bit knowledge about hypothesis. So generally in SPSS, whenever you are conducting a test, we conduct test to check a particular statement, and that statement that is put under testing is called as hypothesis. Now, if you cut hypothesis in two parts, it becomes hypo and thesis. Hypo means anything which is having a lesser value or any item which is undervalued. So hypo means undervalued or having lesser value. Okay. Whereas thesis, this word thesis means a journal idea. So basically, if you'll combine or if you'll amalgamate these two words, that is hypo and thesis, you'll get a journal idea or a journal statement which is having a lesser value as compared to a normal idea. Any statement which cannot be accepted by all is hypothesis. Now, why it cannot be accepted? Because in order to accept that statement, it should be proven. So that is why you formulate hypothesis, so that you can check whether this hypothesis is true or false. And if that hypothesis is true, then you fail to reject that hypothesis, means you accept it. But again, let me tell you one thing before moving further. Never ever say we accept a null hypothesis. We either reject a null hypothesis or we fail to reject a null hypothesis. We never accept a null hypothesis or any hypothesis, whether it is null or alternative. We never accept a hypothesis. Why we never accept a hypothesis? Because whenever we are checking for the validity or true or falsification of a hypothesis, we only apply a single test, and there are lots and lots of tests. Getting it? There are thousands and thousands of tests present in this word, and we apply only one test. So one test is not enough to check the validity or the reliability of a statement. That is why we never say that we accept the null hypothesis. We say that we fail to reject the null hypothesis. There is a difference of saying. Actually, the actual means, mathematically, both means gives you the same thing. Both the statements, either we fail to reject or we accept, both gives you the same output. But if you'll check it in terms of English, both of them means a little bit different. So never ever say we accept the null hypothesis. Null hypothesis is a statement which has already been taken as true. So there is no, reason behind accepting a true statement. Because if you're accepting a true statement, my dear, you're checking for a universal truth. That is practically impossible in research. So never ever say that we reject the accept the null hypothesis. Only say we reject the null hypothesis or we fail to reject the null hypothesis. So moving further, if
So if you're checking for the truification or the falsification of a hypothesis, you need to formulate a hypothesis. Now, how do you formulate a null hypothesis? So you have understood hypothesis is basically any statement which is not having that much amount of weight as a journal statement. Let's try to understand it with the help of an example. If I say that there are 12 months in an year, I think you all will agree, because there are 12 months in an year starting from January till December. But if I say that, so basically the first statement that there are 12 months in a year is a journal statement. Everybody will agree with it. Nobody will disagree with my statement. But if I say that maths is the most interesting subject in this world, maybe you like maths, I don't like maths. Maybe you are fine with numbers, I'm not fine with numbers. So this is a statement with which you all won't agree. Maybe few of you will agree, but few of you might even question me that, I'm not fine with numbers, or I don't like calculating it. I'm not good in maths, or maybe I cannot cram the formulas without any proving. So many of you might disagree. So this is basically hypothesis, because few are agreeing, but few are not agreeing. And for a statement to become a general statement, everybody should agree. So if I want to prove that maths is the most interesting subject in the world, I will have to conduct a research. And for this, first I will have to formulate the hypothesis, and then I will test the hypothesis, whether it is true or false. So my dear, hypothesis is nothing but it is a statement which can be put under testing. Got it? Now, how to formulate a hypothesis? That is also necessary. How do we formulate a hypothesis? Let me just erase it for you. Okay. Now there are 3 golden rules to formulate a hypothesis. First, there are 2 types of hypothesis. So types of hypothesis. Now, my dear, first is a null hypothesis. Oh, pardon me. And the second is an alternative hypothesis. Now, the null hypothesis is generally denoted by H and sub-zero. So this 0 will be H, means it will be underscore. Okay. Here I don't know how to write in Zoom. That's why I'm writing it alternatively. And a null hypothesis is generally denoted by H sub A. So H naught and HA, it is read as this. Now, what is a null hypothesis and what is an alternative hypothesis? First, understand the relationship between null hypothesis and alternative hypothesis. So remember always, a null hypothesis is always negative of alternative hypothesis, or you can say an alternative hypothesis is always opposite of null hypothesis. If I'll say H naught means good, then HA means bad. If I'll say H naught means equal, then HA means unequal. If I'll say H naught means ugly, then HA will be beautiful. So they are just opposite of each other. Simply opposite. Means if null hypothesis is true, then alternative hypothesis has to be false. And if null hypothesis is false, then alternative hypothesis has to be true. That are the basic assumptions. So we never, means we can check, I'll not say never, but generally, I repeat, generally we check for null hypothesis. Means you can check any one of them, but the basic, you as a beginner will try to go for null hypothesis, because you can find any books. Some will say try to check for null hypothesis, it is good. Some will say try to check for alternative hypothesis. Why? Because they have their own experience with null and alternative hypothesis. But you as a beginner of research, I'll always request you to check for null hypothesis. Why? Because there are again golden rules to develop null hypothesis, but there is no such golden rule to develop alternative hypothesis. And those rules are, very simple. So if you'll check, proceed with checking of the alternative hypothesis, you might fall into trouble. And whenever you'll try to check it with SPSS,
My dear, SPSS never takes into account an alternative hypothesis. Let me tell you this thing. Because here you are not studying research methodology. Here you are studying SPSS as a subject. So SPSS always checks for the validity or the trueness of null hypothesis. It doesn't even check for the falseness of the null hypothesis. It only checks for the trueness of null hypothesis. And that I'll tell you when we'll, you know, when we'll talk about t-test. So this you have understood that there is a negative relationship between H0 and HA. Now, how to formulate a null hypothesis? That is very important, because in each and every question, see, SPSS will not tell you what was the null hypothesis or what was the alternative hypothesis. It will never ever tell you. Okay. It will only give you a value, and you will yourself has to decide that what SPSS is trying to say. If you are able to make the correct interpretation of what SPSS is saying, then you can do it. See, doing testing or using SPSS is not a big deal. Interpreting the result of SPSS is a big thing. Everyone can use. There is only click, drag and drop in SPSS. Everybody can learn it within a day or two. After practicing once or twice, you can do it. But if you are able to interpret the results of SPSS, then only you are called as a good researcher. Okay, so let's talk about the golden rules now. How to formulate a null hypothesis. First, you will formulate the null hypothesis, and then you will reverse all the three rules, and automatically the null hypothesis will, the alternative hypothesis will get formulated. So the first golden rule to formulate null hypothesis is assume everything is normal. Now, how to proceed with this phenomena? Everything is normal. For example, we are trying to check, I'm having a coin in my hand. Okay. And I want to check whether this coin is biased or unbiased. Now, what do you mean by biased or unbiased? Biased means खोटा and unbiased means खरा. तो मैं चेक करना चाहता हूं मेरे हाथ में जो सिक्का है वो खरा है या खोटा है. या इस तरीके से ले लीजिए, एक गैम्बलर है. नाउ वो गैम्बलर गैम्बलिंग खेलता है, मींस टॉसिंग ऑफ अ कॉइन. उसकी राइट जेब में एक सिक्का है जो बिल्कुल ही खरा सिक्का है, जिसमें हेड और टेल आने की प्रोबेबिलिटी 50-50 है. और उसकी लेफ्ट हैंड साइड की पॉकेट में एक बायस्ड कॉइन है जिसमें उसने केमिकल वगैरह लगा करके क्या कर रखा है, एक तरफ की साइड को हल्का कर रखा है. तो जनरली जो भारी साइड है वही बार बार आती है. लेट्स से उसने टेल को हल्का कर रखा है तो बार बार उस सिक्के में हेड आता है. नाउ वन डे while washing his clothes, he mixed the two coins. Now there's a problem. By naked eyes, you cannot check which coin is biased or unbiased. So for that, you will have to rely on research. Now, while tossing a coin, what he does, my dear, he starts tossing the coin. Likewise, he might be able to check which coin is biased or which coin is unbiased. Let's say he tosses the coin 10 times. And in one coin, my dear, the head occurs 6 times and the tail occurs 4 times. And in the other coin, the head occurs 8 times and the tail occurs 2 times. Now, although in the second coin, the occurrence of head is more. Getting it? The occurrence of head is more. But the difference between the number of heads in first coin and the difference between the number of heads in the second coin is only 2. Now, it is quite possible that in a normal coin, you can get 8 heads in 10 tosses. It's quite possible. I'm telling you, I've done it and it happens. And in a biased coin, so it is always possible. So again, he cannot judge properly whether that coin is a biased coin or an unbiased coin. But if it repeats this experiment for, let's say, 100 times, and in 100 times, my dear, 80 times there is a head and 20 times there is a tail. Whereas in another coin, my dear, 60 times it is a head and 40 times it is a tail. Then it is quite obvious that the coin which is getting 80 heads is a biased coin.
So this is the power of research means. So if we are checking for whether the coin is a biased or an unbiased coin, there we use this first phenomena, that is everything is normal. If you are checking whether the coin is a biased or unbiased coin, try to check नॉर्मली सिक्का कैसा होता है. नॉर्मली सिक्का जो आप यूज करते हैं नॉर्मल डे टू डे लाइफ में, वो क्या होता है माय डियर, वो अनबायस्ड ही होता है, मींस वो खरा होता है. तो आपकी नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी, कॉइन इज नॉर्मल या कॉइन इज एन अनबायस्ड कॉइन. तो ये पहला रूल है. इस तरीके के एप्लीकेशन में यहाँ पे आपको एक आइटम, एक चीज चेक करनी है, सिर्फ एक ही चीज है, एक एंटिटी को चेक करना है, वहां पे आप पहला रूल यूज करते हो दैट एवरीथिंग इज नॉर्मल. ठीक है, मैं कहूँ आज का डे कैसा रहेगा, आज बारिश होगी या नहीं होगी, तो नॉर्मली माय डियर बारिश नहीं होती है. नॉर्मल डिपेंड करता है कि कौन सा महीना चल रहा है. तो फिर आप क्या करोगे, अगर अभी की बात करें, अभी बेसिकली टुडे 24 अप्रैल, तो नॉर्मली बारिश नहीं होती है, रोज तो नहीं होती है, बरसात का मौसम नहीं है, तो नॉर्मली बारिश नहीं होती है. तो आप क्या कहोगे, आज बारिश नहीं होगी. ठीक है, और अगर बरसात का मौसम चल रहा है तब मैं पूछूं कि आज बारिश होगी या नहीं, तो मैं बरसात का मौसम में जनरली बारिश होती है. तो आप नल हाइपोथेसिस क्या बनाओगे, नॉर्मली आजकल अगर मतलब यही चीज मैं आपसे सितंबर अक्टूबर में पूछूं तो बेमौसम बरसात होती है उस समय. तो आप क्या कहोगे, आज बारिश हो सकती है. सो बेसिकली डाइस है, मैं चेक करना चाहता हूँ ये डाइस नॉर्मल है या एबनॉर्मल डाइस है. तो नॉर्मली जिस डाइस से हम खेलते हैं वो नॉर्मल ही होता है. तो आप क्या कहोगे, डाइस इज अ नॉर्मल डाइस. तो नॉर्मली व्हाटएवर थिंग्स हैपेंस अराउंड आर रियल वर्ड्स व्हेन वी आर चेकिंग फॉर अ सिंगल एंटिटी. जब हम एक एंटिटी को चेक करते हैं तो हम ये मान करके चलते हैं कि वो चीज क्या, एवरीथिंग इज नॉर्मल. देन द सेकंड थिंग इज एवरीथिंग इज इक्वल. जब हम ये चेक करते हैं कि डिफरेंस बिटवीन एनी टू थिंग्स, सपोज दो बच्चे हैं, दोनों सेम जगह ट्यूशन पढ़ते हैं, दोनों सेम क्लास में पढ़ते हैं, सेम स्कूल में पढ़ते हैं, एक जैसे टीचर्स उन्हें पढ़ाते हैं, एक जैसा पेपर वो सॉल्व करते हैं. हमें पता लगाना है कौन सा बच्चा ज्यादा, मतलब विच इंडिविजुअल इज इंटेलिजेंट. नाउ इन इंडियन एजुकेशन सिस्टम हम क्या करते हैं माय डियर, हम ये मान लेते हैं कि क्या है, जिसके ज्यादा मार्क्स हैं वो ज्यादा इंटेलिजेंट है. इज इट रियली ट्रू. एक के मार्क्स आए 94, एक के मार्क्स आए 95, which is intelligent? And tell me the reason why. Why? If you'll say an individual who is getting 95 marks is intelligent, then my question is why. If you'll say he is scoring higher marks, higher, but how much higher? Only 1 mark out of 100 means he is having an intelligence level 1% greater than the other individual. Is it statistically significant? मतलब हिंदी में अगर इसको लेकर के चले तो दो बच्चे हैं, दोनों के बीच में 1 मार्क्स का फर्क है, बट ये 1 मार्क्स का फर्क क्या इतना ज्यादा है कि आप उसके बेसिस पर एक को अच्छा और एक को बुरा रिप्रेजेंट कर दो. तो जनरली रिसर्च की आप मोटिव समझिए. मींस व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट whenever you conduct any type of test, it does not gives you the correct result my dear. मींस टी टेस्ट हो गया, एफ टेस्ट हो गया या जी टेस्ट हो गया, ये सब आपको एक ही चीज बताते हैं. ये सिर्फ आपको ये बताते हैं कि दो चीजों के बीच का डिफरेंस या एक चीज का नॉर्मेलिटी से डिफरेंस या एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल के साथ रिलेशनशिप है या नहीं है. क्या इनकी जो वैल्यूज आ रही हैं वो हमें दोनों को नॉर्मल समझने पर मजबूर करता है या एबनॉर्मल समझने पर मजबूर करता है. अगर दोनों के बीच में डिफरेंस, सपोज हम दो चीज को कंपेयर कर रहे हैं, तो अगर दोनों की वैल्यूज में डिफरेंस बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा सा डिफरेंस है, थोड़ा सा, जिसे हम कहते हैं इनसिग्निफिकेंट डिफरेंस रिसर्च की टर्म्स में, अगर दोनों के बीच में डिफरेंस इनसिग्निफिकेंट है तो हम कहते हैं यार डिफरेंस तो है बट इतना ज्यादा नहीं है, चल जाएगा, चलता है. सो वी टेक देम एज इक्वल. बट इफ देयर is a huge difference between the values of two variables, then we call them that there is a significant difference, यानी बहुत ज्यादा डिफरेंस है, नहीं चलेगा, तो तब हम दोनों को अनइक्वल मान लेते हैं. तो यहाँ पे सपोज कीजिए हम दोनों बच्चों के मार्क्स कंपेयर कर रहे हैं, तो हम क्या मानेंगे शुरुआत में, जब तक हमने टेस्टिंग नहीं करी है, तो हम दोनों में मानेंगे कि दोनों के मार्क्स क्या है, इक्वल है. दो बच्चों की हाइट कंपेयर कर रहे हैं, दोनों की हाइट इक्वल है, चाहे हमें दिख रहा है एक लंबा एक छोटा है, बट क्या वो इतना ज्यादा लंबा है कि उसको और दूसरे बच्चे को हम, एक को हम लंबा मान ले और एक को हम छोटा मान ले. सपोज एक की फीट माइडर
6 फुट 5 इंच है, ठीक है, दूसरे की हाइट 6 फुट है, बट आप कहोगे ऑब्वियसली जो दूसरा 6 फुट 5 इंच है वो लंबा है, बट क्या इतना लंबा है? माय डियर 6 फुट भी छोटी हाइट नहीं होती, तो सोचो ना, दोनों के बीच में डिफरेंस तो है 5 इंच का, बट क्या यहाँ पे 5 इंच वाकई में बहुत ज्यादा डिफरेंस है? Getting it? So in whenever you are comparing two things, whenever you are comparing marks, height, or other characteristics of two individuals, my dear, or two different groups, you try to take, in the starting you try to take both the groups or both the values as equal. And the third rule says that, my dear, everything is independent. जब भी हम इस चीज का कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप चेक करते हैं, जैसे एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल पर असर, जनरली फैक्टर एनालिसिस में लगता है ये, यू वांट टू चेक वेदर वेरिएबल x is related to variable y, or whether there is some relationship between x and y. So in the beginning of the research you try to take that both the variables are independent of each other, न x का y से कोई रिलेशन है, ना y का x से, इंडिपेंडेंट स्टार्टिंग में। बाद में चेक करेंगे वो वाकई में जो हमने सोचा था या जो हमने एज्यूम किया था, बेसिकली नल हाइपोथेसिस इज व्हाट वी आर एज्यूमिंग इन द बिगिनिंग, so later on we'll check that whether our assumptions holds true or not, but in the starting we assume that everything is normal, everything is equal, and everything is independent. So generally when we'll formulate the alternative hypothesis, इसी के सामने बना देते हैं alternative hypothesis, जब हम क्रिएट करेंगे तो क्या आएगा? तो जब हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्रिएट करेंगे तो क्या आएगा? पहला था नल हाइपोथेसिस एवरीथिंग इज नॉर्मल, सो ये आएगा यहाँ पे एवरीथिंग इज एबनॉर्मल और नॉट नॉर्मल, यू कैन टेक एनीथिंग। ये हमारी पहली स्टेटमेंट हो गई। यहाँ पे हमने कहा एवरीथिंग इज इक्वल, तो यहाँ पे हम करेंगे एवरीथिंग इज अनइक्वल। और थर्ड स्टेटमेंट हमने लिखी थी एवरीथिंग इज इंडिपेंडेंट, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एवरीथिंग interdependent. So this is how you formulate null hypothesis, and alternative hypothesis gets formulated itself. एक बार आपने null hypothesis बना दी तो alternative hypothesis आराम से बन जाएगी. So this was only about, my dear, means research hypothesis. Now we'll go to t-test. तो t-test के लिए I'll share another thing with you. Now see, this is basically a data that I'll be sharing with you. Right now I'm showing you it in Excel, later on I'll show you it in SPSS also. Now this is basically a data. Here what I've done, I've taken the marks of 20 students. First I've taken the names of 20 students, Raj, Abhishek, Raman, Anirudh, Rajesh, Mohan, and so on. Now then I have taken the gender of these. Now what I've done, I've taken genders in terms of numbers, means जो मेल है उनको मैंने 1 से डिनोट किया है, जो फीमेल्स हैं यानी जो गर्ल्स हैं उनको मैंने 2 से डिनोट किया है। सिंपल रीजन इज दैट, क्यों किया है? क्योंकि जब हम कंपेयर करेंगे इनको एसपीएसएस में, तो एसपीएसएस नेवर टेक्स इनटू अकाउंट अल्फाबेट्स। स्ट्रिंग वेरिएबल्स एसपीएसएस नहीं समझता, ना उसकी समझ में आते हैं, ना आप उसको समझा सकते हैं, उसको सिर्फ नंबर समझ में आते हैं, 1 2 3 4 0 to 9, ओनली 10, इट कैन अंडरस्टैंड ओनली 10 यूनिट्स, दैट इज 0 to 9। ठीक है, तो हमने 20 बच्चों का नाम लिया है, उनका जेंडर लिया है, या यहाँ से देख लीजिए उनके जेंडर लिए है, और फिर उनके 2 सब्जेक्ट में मार्क्स लिए हैं, मार्क्स हिंदी में और इंग्लिश में। ठीक है, तो ये डेटा हमारे पास है, इसको हमने एसपीएसएस में प्लॉट कर लिया। लेट्स हैव अ लुक, ये आ गया डेटा एसपीएसएस में। कुछ नहीं करना, कॉपी करके पेस्ट कर दो और फिर वेरिएबल्स में जाके वेरिएबल को डिफाइन कर दो। तो स्ट्रिंग वेरिएबल है वो तो बाय डिफॉल्ट नॉर्मल हो जाए, नॉमिनल हो जाएगा। स्ट्रिंग वेरिएबल्स के साथ वैसे भी हम कुछ नहीं कर सकते। जेंडर से मेरे को कुछ काम है तो जेंडर को मैंने जनरली न्यूमेरिक लिया है। अगर जेंडर से काम नहीं होता तो जेंडर को आप मेल फीमेल भी ले लेते, इट हार्डली मेक्स अ डिफरेंस। ओके, मेल फीमेल भी ले लोगे तो भी काम चल जाएगा। ठीक है, नाउ सी, जेंडर लिया है, नाम लिया है, जेंडर लिया है, और मार्क्स इन हिंदी एंड मार्क्स इन इंग्लिश लिए हैं। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, आपको दिख जाएगा। ये रहा मार्क्स इन हिंदी, मार्क्स इन इंग्लिश। वैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, लेबल में भी वही लिया है, नेम, जेंडर, मार्क्स इन हिंदी, मार्क्स इन इंग्लिश। ये इस तरीके का डेटा है। अभिषेक, रमन, अनिरुद्ध, राजेश, इनके मार्क्स है। नाउ द फर्स्ट थिंग इज दैट आई वांट टू चेक वेदर जो स्टूडेंट है वो अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं हिंदी में या नहीं।
माय डियर, अच्छे की कोई डेफिनेशन नहीं होती। आप अच्छा क्या कहोगे? एक बच्चा जिसने पढ़ाई नहीं करी, उसके लिए तो 33 मार्क्स भी बहुत अच्छे हैं, क्योंकि उसने पढ़ाई नहीं था, उसे तो पास की भी उम्मीद नहीं थी। और एक बच्चा जिसने दिन रात मेहनत करी है, उसके लिए माय डियर 90 मार्क्स भी कम है। तो ऐसे केसेस में व्हेन यू डोंट नो द बेंचमार्क, then the researcher or anyone who is conducting the research should give you the benchmark. ऐसा बंदा जहाँ पे आपको, जब आपको पता ही नहीं है कि आपके रिसर्च क्या होगी, वहाँ पे आपको क्या है, बेंचमार्क तो देना पड़ेगा। तो मेरे पास अच्छे और बुरे की कोई डेफिनेशन तो है नहीं। मैंने क्या किया, मैंने एक चीज मान ली कि क्या है, 60% जिसके मार्क्स आए वो बच्चा अच्छा है हिंदी में। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंग्लिश माय डियर, राइट नाउ आई एम ओनली टॉकिंग अबाउट हिंदी. So I want to check whether the student is good in Hindi or not. Now एक बार फिर my dear, आ जाओ व्हाइट बोर्ड पे, इस सबको इरेज कर दो। ओके, बात हो रही है किसकी? स्टूडेंट्स की, मार्क्स इन हिंदी। तो नल हाइपोथेसिस बनाएंगे। नल हाइपोथेसिस क्या होगी my dear? We want to check whether the student is good or not. ठीक है। जनरली बच्चों को माय डियर हम इक्वल ही मानते हैं, सब बच्चों को इक्वल मानते हैं। तो यहाँ पे हम बेंचमार्क चेक कर रहे हैं। नॉर्मली ऑल स्टूडेंट्स आर गुड, फॉर टीचर ऑल आर गुड इन द बिगिनिंग, जब तक हमने पढ़ाया नहीं है। एक साल के बाद या एक सेमेस्टर के बाद पता चलता है बच्चा एक्चुअली में क्या है। तो नल हाइपोथेसिस हमने मान लिया गुड, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या हो जाएगा माय डियर? बैड। ठीक है, तो ये हमारी नॉर्मली स्टेटमेंट हो गई नल हाइपोथेसिस की। सब के सब बेसिकली क्या होता है, जब आप इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट करते हो ना, बेसिकली इतना इतना इफेक्ट नहीं पड़ता उसमें null or alternative hypothesis, but still हमने मान लिया that all the students are good or bad. And always remember my dear, in SPSS we always check for the significance value. Remember it. If the significance value is greater than 0.05, then you fail to reject. और यहाँ पे मैं accept लिख देता हूँ, accept null hypothesis, लेकिन आप मत लिखना else we reject null hypothesis। याद रखना, अगर सिग्निफिकेंस वैल्यू आपकी 0.05 से बड़ी है, बराबर भी नहीं, बड़ी होनी ही चाहिए, एटलीस्ट 0.050001 तो होनी ही चाहिए। ठीक है, तो अगर आपकी सिग्निफिकेंस वैल्यू 0.05 से बड़ी है, देन यू विल एक्सेप्ट द नल हाइपोथेसिस और देन यू विल फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। द करेक्ट एक्सप्लेनेशन इज फेल टू रिजेक्ट। यानी कि हम एक्सेप्ट तो नहीं करते, लेकिन हम मजबूर हो जाते हैं एक्सेप्ट करने के लिए, हमारी मजबूरी है उसको। यार स्पेलिंग्स में क्या हो रहा है? Then we fail to reject the null hypothesis if the significance value is greater than 0.05. Else अगर 0.05 या 0.05 से छोटी है तो फिर तो हम रिजेक्ट कर देंगे नल हाइपोथेसिस को, फिर हम अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को सही मान लेंगे। ठीक है, तो एक्सेप्ट की जगह आप ट्रू भी लिख सकते हो। ट्रू वुड बी द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। ट्रू then means we assume that null hypothesis is true, else we assume that alternative hypothesis is true, जो भी कह लो। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद एसपीएसएस मैटर। कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए, ये आपको याद करना पड़ेगा, इस चीज को ध्यान से समझिएगा। जब हमें मतलब 3 तरीके के टी टेस्ट होते हैं, चलो ये भी मैं आपको समझा देता हूँ, लिख करके समझाऊंगा तो आपको ज्यादा समझ में आएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टी टेस्ट इन्वॉल्व। ऑल्दो उसमें एक आपके कोर्स में नहीं है, सर ने कहा भी था नहीं समझ में आएगा, बट मैं वीडियो बना रहा हूँ तो मैं तीनों समझा दूंगा आपको। 3 तरीके के टेस्ट होते हैं, जिसमें से पहला होता है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। दूसरा होता है वन सैंपल टी टेस्ट। आज सही में दिन बहुत खराब है, स्पेलिंग गलत हो गई है। एंड द थर्ड इज पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। भैया
Okay. So there are three types of t-test. One is independent sample t-test, and pardon me for my spelling mistake, independent sample t-test. Now, what does they do, my dear? जो पहला वाला t-test है, क्या हो गया है? Independent one sample and paired sample. Okay. Now, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट वहां पर पे यूज होता है जहां पे हमारे को एक डेटा सेट को, अभी मैं बताऊंगा डेटा सेट क्या होता है। डेटा सेट वो होता है, जैसे सपोज कीजिए एक ग्रुप में एज्यूम करे हुए मार्क्स, आप इधर देख लीजिए, जैसे इसको शेयर कर देता हूं मैं आपसे। ये जैसे मार्क्स इन हिंदी है ना, तो ये मार्क्स इन हिंदी, हिंदी की स्पेलिंग देखो जरा मेरी, ये मार्क्स इन हिंदी, ये पूरा का पूरा कॉलम, दैट इज द कॉलम, थर्ड कॉलम, दिस इज कॉल्ड एज वन डेटा सेट। मींस एक सेट की वैल्यूज, एक वेरिएबल के अंदर आई हुई वैल्यू इज कॉल्ड एज अ डेटा सेट। तो बेसिकली व्हाट इज एन इंडिपेंडेंट डेटा सेट? the values coming under same head. So independent t-test, we apply independent t-test when you are trying to check the data set, whenever you are trying to check something within a single data set। एक ही डेटा सेट में आप क्या कर रहे हो, एक डेटा सेट को किसी वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहे हो, getting it? You are trying to compare all the values of a data set with a single value, ठीक है। वन सैंपल टी टेस्ट हम कहां पे लगाते हैं? वन सैंपल टी टेस्ट हम वहां पे लगाते हैं जहां पे आप एक ही डेटा सेट को दो भागों में तोड़ रहे हैं। कैसे तोड़ रहे हैं? जैसे एक क्लास है, ठीक है, उस क्लास में कुछ गर्ल्स हैं, कुछ बॉयज हैं, तो है तो एक ही क्लास ना, लेकिन उसको आप क्या है, उसके डेमोग्राफिक फीचर्स पर तोड़ रहे हैं, दैट इज मेल एंड फीमेल, ऑन द बेसिस ऑफ जेंडर यू आर ब्रेकिंग इट। बट by default or within the given example, they all belongs to a single class or a single data set. In that case, you apply what? You apply one sample t-test. And whenever you are trying to compare two different data sets, एक डेटा सेट को दूसरे डेटा सेट के साथ कंपेयर कर रहे हो, वहां पे आप अप्लाई करते हो पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट। सपोज कीजिए, सिंपल सिंपल सी बात बोल देता हूं मैं आपको, मैं चेक करना चाहता हूं कि क्या सारे बच्चे क्लास के अच्छे हैं। अच्छे का मतलब क्या सारे बच्चे 60% से ऊपर ला रहे हैं? तो ऑब्वियसली कुछ लाएंगे, कुछ नहीं लाएंगे। बट सपोज कीजिए 20 में से 18 बच्चे ला रहे हैं, तो दो ही बच्चे तो नहीं ला रहे हैं, क्या ये इतनी बड़ी बात हो गई? या 100 में से दो बच्चे नहीं ला रहे हैं, अब वो दो ला ही नहीं सकते, आप कुछ भी कर लो, ठीक है, बट क्या इतनी बड़ी बात हो गई? टीचर माय डियर सबको एक सा पढ़ा रहा है, अब वो घर जाके किताब ही नहीं खोलते, उसमें टीचर की गलती नहीं है, वो बच्चे ही वैसे हैं। तो उस केस में आप क्या कहोगे? सिर्फ दो बच्चों की वजह से पूरी क्लास का नाम खराब कर दोगे? नहीं माय डियर, उस केस में हम ये मान के चलते हैं कि नहीं, ये दो तो भगवान मालिक है इनका, लेकिन ये क्लास अच्छी है। On an average, this class is good because 80% of the students are securing more than 60%, which is not an easy thing, my dear. 80% से ज्यादा बच्चे आपके फर्स्ट डिवीजन स्कोर कर रहे हैं, so generally that class is considered to be a good class। तो ऐसे केस में क्या लगेगा, क्योंकि आप पूरी पॉपुलेशन को किसके साथ चेक कर रहे हो? एक वैल्यू, वो वैल्यू क्या है? 60। उनके मार्क्स को आप किससे कंपेयर कर रहे हो? एक वैल्यू से, दैट वैल्यू इज 60, because 60%, if the subject is of 100 marks, my dear, then the 60% of 100 is 60, so we are comparing the whole marks of that particular class with 60। अब वन सैंपल टी टेस्ट, आप उसी क्लास में ये चेक करना चाहते हो कि वेदर देयर इज सम डिफरेंस इन द परफॉर्मेंस ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स। बच्चे जो गर्ल्स हैं और जो बॉयज हैं, उन दोनों के परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस है क्या, या दोनों एक साथ परफॉर्म कर रहे हैं? देयर यू विल अप्लाई वन सैंपल टी टेस्ट, क्योंकि क्लास तो एक ही है, मार्क्स भी किसी एक ही सब्जेक्ट के चेक करोगे आप। फिर आप उसमें देखोगे लड़कों के कितने मार्क्स आए, लड़कियों के कितने मार्क्स आए, लड़कों के मार्क्स अलग कर दोगे, लड़कियों के मार्क्स अलग कर दोगे, लड़कों के मार्क्स को ऐड करोगे, उसका मीन निकालोगे, लड़कियों के मार्क्स को ऐड करोगे, उसका मीन निकालोगे, और तब चेक करोगे कि दोनों के मीन में कोई डिफरेंस है। Now there are two questions, my dear. First, you will check whether there exists some difference between the means of the marks of the student or the marks of the, the marks of the boys and the marks of the girls. If there is no difference between the means, then there is no difference in the performance. But if there is some difference,
then you will check whether this difference is significant or insignificant. That is most important. तो पहले तो आप ये चेक करते हो दोनों के मीन्स में कोई डिफरेंस है या नहीं है, और अगर मीन्स में डिफरेंस है, ये आपको स्टैटिस्टिक्स के टेबल में पता चल जाएगा। अभी मैं करके दिखाऊंगा आपको, तो आपको पता चल जाएगा स्टैटिस्टिक्स के टेबल में कि डिफरेंस है या नहीं है। अगर है तो फिर आप टी टेस्ट में ये चेक करते हो क्या ये डिफरेंस इतना ज्यादा है, या बाय डिफॉल्ट आ गया भाई 20 ही तो बच्चे लिए हमने, 100 बच्चों की क्लास में से 20 बच्चे लिए हैं। हो सकता है कि अगर आप पूरे 100 बच्चों को लेते, उसमें से 50 फीमेल्स होती, 50 मेल्स होते, तो शायद मीन्स सेम भी आता, लेकिन हमने सारे बच्चे नहीं लिए। अब सारे बच्चे क्यों नहीं लिए मैडम? क्योंकि देखो रिसर्च में आप सारा नहीं ले सकते। रिसर्च होती ही इसलिए है कि थोड़ा सा सैंपल लेकर के हम पैसे भी बचा लें, समय भी बचा लें, एक्सक्यूज मी, टाइम भी बचा लें, और माय डियर क्या है, अपनी स्किल्स और एनर्जी भी बचा लें। कम पैसे में रिजल्ट भी सही आ जाएगा। तो दैट इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। जब 4 बच्चों की हाइट लेकर के मैं पूरे क्लास की हाइट बता सकता हूँ, तो मैं 40 बच्चों की हाइट क्यों निकालूं? टाइम लगेगा, पैसा लगेगा, स्किल्स लगेगी, एनर्जी लगेगी, क्यों करे इतना काम? रिसर्च उसी के लिए तो बनी है। सो बेसिकली वन सैंपल टी टेस्ट यहाँ पे यूज होता है। पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट में क्या होता है, 2 डिफरेंट डेटा सेट्स होते हैं। हम बच्चों के मार्क्स कंपेयर करना चाहते हैं, बच्चों ने इंग्लिश में भी परफॉर्म किया, हिंदी में भी परफॉर्म किया। मैं चेक करना चाहता हूँ क्या दोनों के मार्क्स, क्या दोनों की परफॉर्मेंस, सारे बच्चों की, क्या बच्चों की परफॉर्मेंस, सपोज कीजिए क्लास बीबीए बीसीए फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं, तो बीसीए फर्स्ट ईयर के बच्चों की परफॉर्मेंस क्या हिंदी और सब इंग्लिश दोनों सब्जेक्ट में एक सी है या नहीं है? तो यहाँ पे 2 अलग अलग डेटा सेट्स हो गए। ऐसे केस में आप पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट यूज करते हैं। So let's begin with the SPSS and try to formulate. Now, the first question is that I want to check whether the students are good in Hindi. यार मुझे बार बार गलत लग रहा है, मैं इसे चेंज ही कर लेता हूँ। Okay, now it's good. Whether students are good in Hindi or not. Now, good means 60% here. So, एक डेटा सेट में एक वैल्यू के साथ कंपेयर करो, इस पूरे डेटा सेट को मैं एक वैल्यू के साथ कंपेयर कर रहा हूं, तो मैं क्या करूंगा, वन सैंपल टी टेस्ट। और याद रखना टी टेस्ट कहां होता है, एनालाइज, कंपेयर, मीन्स। कंपेयर मीन्स के नीचे आपको सारे मीन्स के टेस्ट मिलेंगे। मीन्स जो है वो सिर्फ मीन निकाल करके देगा, वैसे वो टी टेस्ट के अंदर भी मीन निकल जाता है। पहला है वन सैंपल टी टेस्ट, दूसरा है इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, तीसरा है पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, और चौथा है एनोवा। एनोवा भी सुन लो कहाँ लगता है, देखो एनोवा की फुल फॉर्म होती है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस क्या करता है, सपोज कीजिए यहाँ पे 2 सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी और इंग्लिश, मैं एक तीसरा सब्जेक्ट ले आता हूँ मैथ्स। अब क्या करोगे, मेरे को चेक करना है क्या स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश में एक सा है या नहीं है। यहाँ पे मैडम 2 से ज्यादा पॉपुलेशन हो गई, यानी 2 से ज्यादा डेटा सेट्स हो गए। अब टी टेस्ट की प्रॉब्लम ये है कि टी टेस्ट एक बारी में सिर्फ 2 ही चीजों को चेक कर सकता है। जब पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट पढ़ेंगे ना, चलो मैं आपको दिखा देता हूँ, करके तो नहीं, बाद में दिखाऊंगा, लेकिन अभी दिखा देता हूँ। ये देखो, इसको रीसेट करने दो। ये देखो, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट सिर्फ 2 वेरिएबल्स को चेक करता है, देयर इज नो थर्ड वेरिएबल। आप डालने की कोशिश भी करोगे तो वो नहीं लेगा, वो लेता ही नहीं है। तो बेसिकली जब 2 से ज्यादा पॉपुलेशन सेट्स आपके पास होते हैं, यानी 2 से ज्यादा डेटा सेट्स आपके पास होते हैं, 3, तो आप टी सैंपल टेस्ट नहीं लगा सकते। यानी कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको पहले हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स कंपेयर करने पड़ेंगे, फिर इंग्लिश और मैथ्स के मार्क्स कंपेयर करने पड़ेंगे, और फिर हिंदी और मैथ्स के मार्क्स कंपेयर कर, तो 3 बार आपको, मतलब 3 पॉपुलेशंस को अगर आपस में कंपेयर करना है, तो आपको 3 बार टी टेस्ट लगाना पड़ेगा। काम ज्यादा है, रिलायबिलिटी पे भी फर्क पड़ता है। रिलायबिलिटी पे कैसे फर्क पड़ता है, इस तरीके से समझिए। आपने पहला टी टेस्ट लगाया, वो टी टेस्ट कितना था, 99% सिक्योर था, या लेट्स से 90% सिक्योर था, गुड। आपने दोबारा टी टेस्ट लगा दिया, वो भी 90% सिक्योर था। आपने तीसरी बार टी टेस्ट लगा दिया, वो भी 90% सिक्योर था। तो जरा ऐसे समझिए, you have applied t test for 3 times. So the first test was, my dear, how much secure? It was 90% secure. Then you applied it again, it is again 90%. The third is again 90%. Just pardon me for a minute. Okay, so the first test was 90% secure, the another test for was also 90% secure, and the third test was also 90% secure.
So ultimately when the value will come, it will be 90.9 multiplied by 0.9 is 0.81 and then multiplied by 0.9 0.72. तो जो एक्चुअल वैल्यू आएगी वो आपकी 72 से 73% क्या आएगी, एक्यूरेट आएगी, विच इज नॉट गुड, नॉट एट ऑल गुड. रिसर्च में अगर कोई भी वैल्यू आपकी 90% से कम एक्यूरेसी की आती है, that is not a good research. So that is why we don't apply multiple t-tests. Although you can do it with multiple t-tests, you can solve that question with multiple t-tests, but never ever do that. So always try to do it with ANOVA. यानी कि जब भी कभी भी आपके पास 2 से ज्यादा डेटा सेट्स होते हैं तो आप टी टेस्ट लगा सकते हो, बट टी टेस्ट लगा करके कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो रिसर्च जो होगी वो बहुत ज्यादा वैलिड नहीं होगी, ज्यादा लोग उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसकी जो रिलायबिलिटी है वो बहुत कम है, उसका जो एरर रेट है वो बहुत ज्यादा है, उसमें गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है. तो जब भी आपके 2 से ज्यादा डेटा सेट्स होते हैं यू अप्लाई एनोवा. बेसिकली समझ गए. तो पहले क्वेश्चन पर चलते हैं. क्या बच्चों ने हिंदी में अच्छा परफॉर्म किया है? तो नल हाइपोथेसिस क्या बनेगी? हाँ, अच्छा परफॉर्म किया है. ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस बनेगी नहीं, अच्छा परफॉर्म नहीं किया है. गो टू एनालाइज, गो टू कंपेयर मीन्स एंड गो टू वन सैंपल टी टेस्ट. अप्लाई किया, मैं रिसेट कर लेता हूँ, ऐसे दिखेगा आपको जब आप अप्लाई करोगे. तो यहाँ पे आएगा टेस्ट वेरिएबल. आपने टेस्ट किसको करना है? हिंदी के मार्क्स को. हिंदी के मार्क्स पे क्लिक कीजिए, टेस्ट वेरिएबल्स की तरफ भेजिए. टेस्ट वैल्यू कितनी है माय डियर? मैं 60% चेक कर रहा हूं, तो 60 नंबर. प्रेस ओके. यू विल गेट अ टेबल. नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस टेबल वेरी इफेक्टिवली, देन ओनली, क्योंकि इंटरप्रिटेशन रिसर्च में बहुत इंपॉर्टेंट है. हाउ यू आर इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट्स ऑफ टी टेस्ट, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट. सो लेट्स सी Which test you have applied. ये ऊपर का तो कोडिंग है, इसे तो छोड़ दो, that is not of use. हाँ, BCA वाले बच्चे समझ सकते हैं. बेसिकली ये जो टेस्टिंग है ये .html फॉर्मेट में होती है, जिसकी जो .txt फाइल आपको दिख रही है, that we have applied t-test, then test value, TESTVAL stands for test value. Test value means जो हमने significant value रखी थी, that was 60. There was no missing value when we analyzed it. एंड द वेरिएबल्स जिसको हम चेक कर रहे हैं, जिसको हमने टेस्ट वेरिएबल लिया, वो मार्क्स इन हिंदी है, और क्राइटेरिया जो है वो 95% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर चेक हुआ है. मींस जो ये रिसर्च है इसकी जो वैलिडिटी है, इसकी जो रिलायबिलिटी है, दैट इज 95% गुड. इसमें 5% एरर के चांसेस हैं. 100 बार ऐसी रिसर्च करोगे तो 5 बार हो सकता है शायद गलत हो जाए, लेकिन 95% मैंने आपको पहले बताया, एनीथिंग अबव 90% इज अ गुड रिसर्च. सो हियर वी आर हैविंग एटलीस्ट 95%. आप इसे कम ज्यादा भी कर सकते हो, बट बाय डिफॉल्ट इसे 95% ही रहने दो. वो SPSS बाय डिफॉल्ट 95% ही लेता है, एंड दैट इज ऑलवेज अ गुड रिसर्च. देखो, तो वन सैंपल स्टैटिस्टिक्स पहले समझते हैं. हमने किसको चेक किया? मार्क्स इन हिंदी. कितने वेरिएबल्स थे? 20 बच्चों के मार्क्स थे. ठीक है, उनका मीन क्या आया? मतलब सारे मार्क्स को ऐड किया एंड डिवाइडेड बाय 20, यू विल गेट 55.05. स्टैंडर्ड डेविएशन, आई थिंक यू ऑल नो. बेसिकली स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है माय डियर? इट इज वेरिएंस इज द स्क्वायर ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन. तो वेरिएंस का जो रूट होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन होता है. बेसिकली डेविएशन फ्रॉम मीन, दैट इज समीशन xi minus x bar डिवाइडेड बाय n का अंडर रूट, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन माइडर, डेविएशन को आप डिग्रीज ऑफ फ्रीडम यानी n-1 से डिवाइड कर दोगे तो यू विल गेट व्हाट, दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. ये आपके मतलब का नहीं है, बट फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ. स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है वो समीशन xi minus x bar का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n का अंडर रूट, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन. और उस वैल्यू को भी आप n-1 से डिवाइड कर दोगे, दैट इज स्टैंडर्ड एरर ऑफ मीन. ठीक है, वो बेसिकली रिसर्च मेथोडोलॉजी में काम आता है, SPSS में उतना काम नहीं आता. बेसिकली वन सैंपल स्टैटिस्टिक्स आपकी समझ में आ गया. मेन है इंपॉर्टेंट, कितने वेरिएबल्स लिए हमने, n, कोई मिसिंग तो नहीं है, नहीं दिखा रहा है तो नहीं है, मीन कितना आया हमारा, दैट्स इट. नाउ गो टू वन सैंपल टी टेस्ट. नाउ माय डियर, मैंने आपसे बताया था सिग्निफिकेंस वैल्यू को देखते हैं. ये रही सिग्निफिकेंस वैल्यू मार्क्स इन हिंदी के थर्ड कॉलम में. ये कितनी आ रही है? 0.494. पहले ये समझ लो. टी वैल्यू कितनी है इसकी? -0.698. वो भी मैं बताऊंगा क्या होता है. डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है 19. सिग्निफिकेंट वैल्यू है 0.494. मीन डिफरेंस, लोअर अपर, ये सब छोड़ दो, दिस इज मोर इंपॉर्टेंट. नाउ व्हाट इज अ टी वैल्यू माय डियर? देखो, जब भी आप टेस्ट करोगे ना, तो किसी भी टेस्ट की जो वेदर द डेटा इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट और नॉट, क्या ये डेटा सही डेटा है, रिलायबल है, ऑथेंटिक सोर्स से लिया गया है, वो बताता है आपकी ये टी वैल्यू. ये आया है -0.698. ये वैल्यू माय डियर आपकी नेगेटिव तो होनी ही नहीं चाहिए. ये 0.05, एटलीस्ट इट शुड बी
greater than 0.05. Getting it? तो बेसिकली ये डेटा जो है ये फर्जी डेटा है, और ये मैंने एक्सेल पे बनाया तो ऑब्वियसली फर्जी है, ठीक है, उससे इसका मतलब नहीं है। बट यहाँ पे देखिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है हमेशा n-1, n की वैल्यू कितनी थी 20, 20 - 1 इज 19। देन सिग्निफिकेंट वैल्यू ऑफ टू टेल टेस्ट, ये इंपॉर्टेंट है जो हमारे आंसर देगा। मैंने क्या कहा था, इफ योर वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05 you will accept or you will assume that the null hypothesis is true। यहाँ पे जो वैल्यू है माय डियर 0.494, 9 टाइम्स ज्यादा बड़ी है 0.05 से। याद रखें माय डियर 0.5 नहीं कह रहा हूं मैं, कई बार बच्चे गलती कर देते हैं 0.5, 0.05 आई एम टॉकिंग अबाउट 0.05। और एसपीएसएस में हर एक टेस्ट यही सिग्निफिकेंस वैल्यू फॉलो करता है, इसको आज ही याद कर लो। If the value is greater than 0.05, you will assume that the null hypothesis is true. If the value is equals to or less than 0.05, you will assume that the null hypothesis is false. And if null hypothesis is false, then alternative hypothesis will be true. अब आइए, आपने null hypothesis क्या मानी थी? आपने null hypothesis ये मानी थी कि क्लास में बच्चे के जो मार्क्स हिंदी में है वो गुड है, यानी कि क्लास अच्छी क्लास है। तो हमारा आंसर आ गया दैट द क्लास इज अ गुड क्लास। नाउ देख लो माय डियर, अगर आपको वैसे भी चेक करना है ना वैल्यूज के हिसाब से, तो लेट्स चेक इट। इसको बंद करो, ये क्या खुल गया, ये देखो माय डियर 90 मार्क्स आ रहे हैं, के 87 आ रहे हैं, 32 आ रहे हैं, 34 आ रहे हैं, 7 आ रहे हैं। ये दो तो फेल है 32 और 7 वाले, लेकिन बाकी देखो 93, 69, 87 ये भी फेल है, 86, 42, 88, 82, ओवरऑल 44, 88। मतलब आप देखोगे जो पास हो रहे हैं, एवरेज पासिंग तो कोई है ही नहीं। जनरली दे आर गेटिंग अबव 60। तो काफी सारे बच्चे ऐसे हैं 20 में से आउट ऑफ 20 माय डियर, दोज हु आर गेटिंग मार्क्स अबव 60%, और यू नो देयर आर 90% आल्सो। सो मींस जनरली ये क्लास इज अ गुड क्लास। बाकी ये 2, 12, 7 इनका तो भगवान मालिक है, ये वो है जो होने भी नहीं चाहिए क्लास में, पता नहीं पहुंच भी कैसे गए इस क्लास तक, ठीक है। सो दैट इज इट। नाउ माय डियर वी विल चेक whether there exists some difference in the performance of boys and girls। तो क्या कर रहे हैं, अगेन आ जाओ नल हाइपोथेसिस बनाते हैं पहले, फिर बात करेंगे। तो इस क्वेश्चन के लिए नल हाइपोथेसिस क्या होगी? तो वीडियो देख रहे हैं माय स्टूडेंट्स, व्हेन यू आर वाचिंग दिस वीडियो ट्राई टू डेवलप योरसेल्फ आल्सो। मतलब इसको ऐसे मत देखो जैसे माता का जागरण चल रहा है। मैं तो अभी आपसे इंटरेक्ट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कम से कम वीडियो बनाते हुए अपने दिमाग से कैलकुलेशन करो। मैंने क्या बताया था, 3 गोल्डन रूल। एवरीथिंग इज नॉर्मल, वो पहले क्वेश्चन में कर लिया। दूसरा गोल्डन रूल आता है एवरीथिंग इज इक्वल माय डियर। तो आप क्या कहोगे, मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू मार्क्स ऑफ बॉयज। यही तो होगा एवरीथिंग इज इक्वल का मतलब, मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू मार्क्स ऑफ बॉयज। और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या बन जाएगी, मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज नॉट इक्वल्स टू, यही बनेगी। एक और चीज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज माय डियर, null and alternative hypothesis only tells you again one common fact about ANOVA। मैंने अभी आपको ANOVA बताया था, तो यहीं से आपको पता चल जाएगा ANOVA का एक एडवांटेज क्या होता है ओवर टी टेस्ट। टी टेस्ट आपको सिर्फ ये बताता है मार्क्स ऑफ गर्ल्स, either the marks of girls is equal to the marks of boys or not equals to। गेटिंग इट? ये तो बता देगा आपको कि मार्क्स किसके बराबर हैं या नहीं है, किसके ज्यादा है। सपोज कि ये इक्वल नहीं है, अनइक्वल है, किसके ज्यादा है ये कभी नहीं बताता टी टेस्ट। ऑन एन एवरेज अगर आप गर्ल्स को पूरा एक ग्रुप मान लो और बॉयज को दूसरा ग्रुप मान लो, तो ज्यादा किसके हैं वो आपको टी टेस्ट नहीं बताएगा, वो आपको हमेशा मीन बताएगा। हु इज हैविंग अ बेटर परफॉर्मेंस। बेटर परफॉर्मेंस मतलब हो सकता है दोनों की परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट इक्वल हो, यानी सिग्निफिकेंटली डिफरेंस नहीं होगा ज्यादा, लेकिन बेटर फिर भी अगर हमें डिफरेंस निकालना ही है
थोड़ा सा भी डिफरेंस अगर हमें क्रिएट करना है तो किसकी परफॉर्मेंस बेटर थी वो नहीं बताता, वो तो मीन ही बताएगा। तो यहाँ पे वी हैव फॉर्मुलेटेड द नल एंड अल्टरनेटिव, अभी बता दूंगा मैं व्हाट आई एम ट्राइंग टू स्पीक। तो यहाँ पे हमने दो फॉर्मुलेट हाइपोथेसिस फॉर्मुलेट कर ली। नल हाइपोथेसिस है मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज इक्वल्स टू मार्क्स ऑफ बॉयज, और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है मार्क्स ऑफ गर्ल्स इज नॉट इक्वल्स टू मार्क्स ऑफ बॉयज। एंड लेट्स क्लोज इट नाउ। फिर मेरी शक्ल आ गई यार। ओके, नाउ वी विल परफॉर्म। तो हिंदी में गर्ल्स और बॉयज की परफॉर्मेंस कंपेयर करनी है। एनालाइज में जाओ, कंपेयर मींस सेकंड टाइप ऑफ टेस्ट दैट इज इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट। रीसेट कर लो। अब देखो इसमें क्या बताता है, ये एक टेस्ट वेरिएबल चाहिए। किसको टेस्ट करें? मार्क्स इन हिंदी, वो आ गया। ग्रुपिंग वेरिएबल्स, आपने ये जो मार्क्स इन हिंदी है ना, ये एक डेटा सेट है। इसको आपको दो भागों में बांटना है। कैसे बांटोगे? उसके लिए आपको कोई फीचर चाहिए ना, तो मैं जेंडर के बेसिस पे बांट रहा हूँ। हमें जेंडर को ग्रुपिंग वेरिएबल मान लूंगा कि बॉयज और गर्ल्स के बेसिस पे। अब माइडर प्रॉब्लम ये देखो, ओके का साइन अभी भी नहीं आया। एसपीएसएस क्या करता है? एसपीएसएस ग्रुपिंग वेरिएबल ले तो लेता है, बट इस ग्रुपिंग वेरिएबल को डिफाइन नहीं कर पाता। तो ग्रुपिंग वेरिएबल को आपको खुद डिफाइन करना पड़ता है। एक ग्रुप देखो 1 का है, दूसरा ग्रुप 2 का है। आप इसमें माइडर 0 1 भी ले सकते हो, 10 20 भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आंसर सेम आएगा। कट पॉइंट बाद में सभी समझाऊंगा जब मैं आपको का स्क्वायर कराऊंगा। कट पॉइंट उसके लिए होता है। अब देखो माय डियर, ओके आ गया, ठीक है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन टी टेस्ट इज दैट माय डियर, जब आप कंपेयर करते हो मीन्स को किन्हीं भी दो सेट के, सपोज करिए आप किसी क्लास, आप रिसर्च के बारे में कुछ नहीं जानते, आप सिर्फ मीन्स पता करना चाहते हो, ठीक है। आप मीन्स के बेसिस पे कह दोगे कि जिसका मीन बेटर आया, बड़ा आया, वो बेटर परफॉर्म किया है। लेकिन माय डियर उसके लिए क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ मेल्स शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ फीमेल्स, तब जाके आप सही एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। यहाँ पे अगर आप देखें माय डियर, मेल्स और फीमेल्स का नंबर बराबर नहीं है। मेल्स आर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, आउट ऑफ 20 देयर आर 11 मेल्स एंड 9 फीमेल्स। ऐसे केसेस पे आपका मीन्स का रेलेवेंस सेट नहीं बैठता। लेकिन टी टेस्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। अगर सिर्फ एक लड़की भी होती है और 19 लड़के भी होते तो भी टी टेस्ट अपना क्लैरिफिकेशन दे देता। मीन्स में आप ऐसा नहीं कर सकते। मीन्स में तो माय डियर एक तरीके से अगर 19 लड़के और एक लड़की है तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। पता चला उस बच्ची ने अच्छा परफॉर्म कर दिया, ओवरऑल बॉयज ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो यू कैन नॉट, देन मीन इज नॉट द करेक्टिव मेजर। मीन तभी देखा जाता है बेसिकली जब क्या हो, पॉपुलेशन के जो ग्रुपिंग वेरिएबल्स हैं वो बराबर हो। टी टेस्ट में ऐसा नहीं है, दैट इज व्हाई टी टेस्ट इज मोर इफेक्टिव एज कंपेयर टू मीन्स। सो लेट्स प्रोसीड। ग्रुप डिफाइन हो गया, ओके करो। ये आ गया आपके आगे, जरा मेरे को सही से लाने दो। ये हो गया, ठीक है। अब देखो माय डियर, जस्ट टेक इट अप। ये देखिए, पहला अगेन ग्रुप स्टैटिस्टिक्स देखेंगे। मार्क्स इन हिंदी, जेंडर 1 जो मेल था 11 मेल है, जेंडर 2 9 फीमेल्स हैं, ठीक है। मींस आया मेल्स का 56.36, फीमेल्स का आया 53.44। तो आप कह सकते हो ऑन एन एवरेज फीमेल्स का परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं है जितना मेल्स का है, यानी कि बॉयज का परफॉर्मेंस हिंदी के सब्जेक्ट में गर्ल्स के परफॉर्मेंस से बेटर है। बट क्या ये इतना बड़ा डिफरेंस है कि हम ओवरऑल परफॉर्मेंस को गलत कह दे? भाई कोई ऐसी भी लड़की होगी जिसने बॉयज से अच्छा परफॉर्म किया होगा। अगर यकीन नहीं आता माय डियर, आप डेटा देख लो, क्या दिक्कत है? Can have a look at the data. Now see, Gunjan is a girl which is having greater marks than Fahim. फहीम के 42 हैं, गुंजन के 88 हैं, तो गुंजन ने तो बेटर परफॉर्म किया है अपने दम पर, ठीक है। कीर्ति इज अ गर्ल अगेन गेटिंग 88। मेरे ख्याल में एक ही लड़का है जिससे गुंजन और कीर्ति ने कम परफॉर्म किया है, वो है राज। बाकी सबसे तो बेटर ही परफॉर्म किया है। सेकंड हाईएस्ट तो गुंजन और कीर्ति के ही है, जबकि राज अकेला ऐसा लड़का है जिसके 90 है। तो ओवरऑल तो इन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, बट माय डियर वो ओवरऑल इतना ज्यादा है कि पूरी की पूरी परफॉर्मेंस को ही नकार दिया जाए, तो ऐसा नहीं हो सकता ना। रिसर्च में हर एक चीज को देखा जाता है। तो यहाँ पे वही चीज बताई जा रही है। मार्क्स इन हिंदी में बॉयज का परफॉर्मेंस बेटर है क्योंकि उनका मींस 56.36 है, गर्ल्स का 53.44 है। बट क्या ये डिफरेंस इतना बड़ा डिफरेंस है कि हम पूरी परफॉर्मेंस को ही नकार दें? तो उसके लिए हम चलते हैं इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट में। अब आप यहाँ पे देखोगे दो सिग्निफिकेंस है।
एक सिग्निफिकेंस वैल्यू यहाँ है और एक सिग्निफिकेंस वैल्यू यहाँ है। जो हमें देखनी है वो ये वाली सिग्निफिकेंट वैल्यू है, लेकिन पहले इसके बारे में बात करते हैं कि ये क्या चीज है। ये माय डियर बेसिकली एफ टेस्ट है, जिसकी मैं बात कर रहा था कि जब हम टी टेस्टिंग करेंगे तो मैं उसमें एफ और जी के बारे में भी बता दूंगा। एफ टेस्ट क्या करता है माय डियर? एफ टेस्ट आपका डेटा की वैलिडिटी चेक करता है, वेदर द डेटा इज वैलिड और नॉट। और इसके सिग्निफिकेंस वैल्यू बेसिकली हम टेस्ट कौन सा कर रहे हैं? लेवेंस टेस्ट फॉर इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस। ये चेक करता है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस? ठीक है, अंडरस्टैंड इट माय डियर। अगर हम लड़कों के मार्क्स और लड़कियों के मार्क्स अलग कर देते हैं तो यहाँ पे देखो वैल्यू कितनी आ रही है, 0.05 से बहुत ज्यादा आ रही है। यानी कि अपने आप में अगर लड़कों के मार्क्स अलग कर दो तो वो स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है, लड़कियों के मार्क्स अलग कर दो तो वो भी स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट है। मीन्स द डेटा इज स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट। कोई भी इस डेटा को गलत नहीं कह सकता। then comes the significant value. Here we are checking for whether, देखो यहाँ पे दो significant value हैं, 0.844 0.844। बहुत कम ऐसा होता है कि इन दोनों वैल्यूज में डिफरेंस होता है, बट कभी कभी होता है। तो कौन सी वैल्यू चेक करें, ऊपर वाली या नीचे वाली? एक है इक्वल वेरिएंसेस अज्यूम्ड और एक है इक्वल वेरिएंसेस नॉट अज्यूम्ड। उसके लिए हम चेक करते हैं ये सिग्निफिकेंस वैल्यू। बेसिकली ये इक्वालिटी ऑफ वेरिएंस के लिए ही है। अब देखो हम चेक कर रहे हैं कि इन दोनों ग्रुप्स में, गर्ल्स और बॉयज में, इक्वल वेरिएंस है या अनइक्वल वेरिएंस है। मैंने आपको क्या बताया था, जहां पे भी इक्वालिटी की बात हो वहां पे हम क्या करते हैं? सिग्निफिकेंट वैल्यू चेक करते हैं। इक्वल, हमेशा इक्वल होना, यानी कि द वैल्यू सिग्निफिकेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन 0.05 तो हम इक्वल वेरिएंस एज्यूम करेंगे। यहाँ पे सिग्निफिकेंट वैल्यू कितनी है माय डियर? 0.710। ये 11th की है, टी टेस्ट की नहीं है। टी टेस्ट की सिग्निफिकेंस वैल्यू टू टेल्ड होती है, याद रखना। यहाँ पे 11th टेस्ट की चेक कर रहे हैं हम। तो द 11th टेस्ट की सिग्निफिकेंस वैल्यू इज 0.710 व्हिच इज ग्रेटर देन 0.05। यानी कि साफ साफ ले लो, अगर ये सिग्निफिकेंट वैल्यू 0.05 से बड़ी है तो आप ऊपर वैल्यू वाली चेक करते हो, अगर ये वैल्यू 0.05 से छोटी है तो आप नीचे वाली वैल्यू चेक करते हो। मींस इफ द सिग्निफिकेंट वैल्यू for 11th test is greater than 0.05 then you assume that the variances are equal. If the 11th test value is smaller than 0.05 then you assume that variances are unequal. So here the value is greater than 0.05 तो आप ऊपर वाली वैल्यू चेक करोगे जो आ रही है 0.844। ये भी 0.05 से बड़ी है। इसका मतलब क्या है? मेल्स और फीमेल्स का जो परफॉर्मेंस है वो एक सा है। अच्छा चलो अब जरा इसकी चेकिंग कर लेते हैं। मैं एक काम करता हूँ, मैंने शेयरिंग स्टॉप करी है एंड लेट्स चेंज द डेटा। डेटा को चेंज करके देखते हैं क्या डेटा पर कोई इफेक्ट हो रहा है। लेट्स हैव अ लुक। मेल्स का परफॉर्मेंस और फीमेल्स का परफॉर्मेंस एक सा आ रहा है ना। चलो मेल्स का परफॉर्मेंस बढ़ा देते हैं, इसके 90 आए, इसके 90 आए, इसके भी 90 आए। जितने भी मेल्स हैं सबके मार्क्स 90 कर दो और चेक करो क्या टी वैल्यू पर कोई फर्क पड़ता है। भावना के मत करो, चंदन के कर दो 90, दीपक के कर दो 90, एकता के ऐसे ही रहने दो, फहीम के कर दो 90, गीता के 12, गुंजन के तो सॉरी गुंजन के 88 कर दो जो थे, गणेश के कर दो 90, हीना के ऐसी रहने दो, जागृति के ऐसी रहने दो, कीर्ति के ऐसी, लता के मान, निशांत के कर दो 90। क्या कुछ फर्क पड़ेगा? लेट्स अगेन डू द टेस्टिंग माय डियर। एक बार और टेस्टिंग करके देखते हैं। एनालाइज, कंपेयर मींस, इंडिपेंडेंट सैंपल टी टेस्ट, बाकी सारी चीजें वैसी है। ओके कर दो सीधा। देखो ये नया टी टेस्ट आ गया। देखो जो रिजल्ट्स हमारे हैं वो और ज्यादा स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट हो गए, एफ की वैल्यू और आ गई, लेकिन सिग्निफिकेंट वैल्यू जो है 0.05 से छोटी है, 0.000 है। तो हमें नीचे वाली वैल्यू लेनी पड़ेगी। नीचे वाली वैल्यू कितनी आ रही है? 0.009 विच इज लेस देन 0.05। यानी कि मेल्स और फीमेल्स का परफॉर्मेंस एक सा नहीं है। यानी कि मेल्स और फीमेल्स के परफॉर्मेंस में कोई डिफरेंस है। तो कोई डिफरेंस है, लेकिन बेटर कौन है वो नहीं बताएगा। बेटर नहीं बताएगा, वो बेटर यहां से पता चलेगा, यहां से मीन से। मेल्स का मार्क्स 90 आ रहा है, फीमेल्स का मार्क्स 53 आ रहा है। इसका मतलब मेल्स हैव आउट परफॉर्म और द बॉयज हैव आउट परफॉर्म द गर्ल्स इन हिंदी सब्जेक्ट। दैट्स इट। तो ये चेकिंग हो गई कि हम जो अब तक कर रहे थे वो ठीक था या नहीं था। अब जो थर्ड टेस्ट है माय डियर, दैट इज नॉट इन योर कोर्स,
लेट मी अरेंज द डेटा फर्स्ट। वो आपके कोर्स में तो नहीं है, मतलब वो 2 सैंपल टी टेस्ट है, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट है, सॉरी, बट समझा देता हूँ मैं इस वीडियो में, क्योंकि पूरी टी टेस्ट के लिए मैं एक वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आपकी समझ में आ जाए तो इट्स गुड, बेटर है, आप ही का फ़ायदा होगा कभी ना कभी, ठीक है। लेकिन नहीं भी समझ में आए तो डोंट वरी, उसका बेसिकली प्रॉब्लम कुछ नहीं है उसमें, उसका एनालिसिस थोड़ा टेढ़ा होता है, तो वो समझ लीजिए। समझाने की पूरी कोशिश करूंगा मैं, बट फिर भी न भी आए तो नॉट अ बिग डील। देखो अब हमें क्या करना है कि हिंदी में परफॉर्म बच्चों ने अच्छा किया या इंग्लिश में, या एक सा परफॉर्म किया, तो फिर से आ जाओ नल हाइपोथेसिस और अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस में बनाते हैं। यहाँ पे मार्क्स ऑफ गर्ल्स की जगह क्या आ जाएगा माय डियर, जब हम एच नोट और एच ए बनाएंगे तो एच नोट बनेगा परफॉर्मेंस इन हिंदी इज इक्वल्स टू परफॉर्मेंस इन इंग्लिश, बराबर है। तो अल्टरनेटिव क्या बन जाएगी, परफॉर्मेंस इन हिंदी इज नॉट इक्वल टू परफॉर्मेंस इन इंग्लिश, दैट्स इट। ये बन गया, आसान है। तो धीरे धीरे करके आपको आदत हो जाएगी, आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो ये चीज हम चेक कर रहे हैं, ठीक है। चलते हैं अपने एसपीएसएस में, ये है मार्क्स, एनालाइज पे जाइए, कंपेयर मींस, पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट, रीसेट कर देता हूँ मैं इसे। अब देखो किस किस को चेक करना है, मार्क्स इन हिंदी और मार्क्स इन इंग्लिश। तो मार्क्स इन हिंदी को एक ले लिया, मार्क्स इन इंग्लिश को एक ले लिया। आप किसी को भी 1 किसी को भी 2 ले सकते हैं। अब देखो अगर यहाँ पे मार्क्स इन मैथ्स भी होता तो उसको आप फिर यहाँ पे लेते, फिर उसके साथ आप या तो हिंदी लेते या इंग्लिश लेते, फिर तीसरा एक और वेरिएबल लेते, फिर उसको करते रहते। तो मल्टीपल टी टेस्ट हो जाता है जब आप 2 से ज्यादा पॉपुलेशन को कंपेयर करो, इसीलिए एनोवा यूज करो वहां पे। खैर ओके कीजिए, ये आ गया आउटपुट आपका पेयर्ड सैंपल टी टेस्ट का। तो इसमें देखिए सबसे पहले पेयर्ड सैंपल स्टैटिस्टिक्स, मार्क्स इन हिंदी का जो मीन है वो 55.10 है पूरे 20 बच्चों का, इंग्लिश का 51.40 है 20 बच्चों का। तो मार्क्स इन हिंदी का जो परफॉर्मेंस है वो बेटर है, यानी कि दोनों के मीन के बीच में फर्क है, लेकिन 4 नंबर का फर्क है, क्या ये इतना बड़ा फर्क है? तो लेट्स हैव अ लुक डाउनवर्ड्स। अब ये कोरिलेशन बताता है। अब देखो कोरिलेशन का क्या रूल है माय डियर, क्या होता है, समटाइम्स द डेटा इज कोरिलेटेड, गेटिंग इट, वेदर देयर एग्जिस्ट सम कोरिलेशन बिटवीन द डेटा और नॉट, उससे टी टेस्ट पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक तरीके से बच्चे की कोरिलेशन बता देता है। देखो यहाँ पे क्या है, -0.257, यानी कि हिंदी और इंग्लिश के मार्क्स में एक बहुत ही स्मॉल नेगेटिव कोरिलेशन है। नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब क्या होता है मैडम, जो बच्चा हिंदी में परफॉर्म कर रहा है वो उसका ऑपोजिटली परफॉर्म कर रहा है, उतना ऑपोजिटली लेकिन थोड़ा बहुत गलत परफॉर्म कर रहा है इंग्लिश में, यानी कि कहीं ना कहीं दोनों के टीचर्स के पढ़ाने के तरीके में कुछ डिफरेंस है। जिस बच्चे का परफॉर्मेंस हिंदी में अच्छा है उसका इंग्लिश में बुरा है, और जिसका इंग्लिश में परफॉर्मेंस अच्छा है उसका इंग्लिश हिंदी में बुरा है। और ये होता है माय डियर, इंग्लिश एंड हिंदी आर बेसिकली टू अपोजिट, टू पोल्स, दे बोथ आर फार अपार्ट। होता है ना, जो बच्चा इंग्लिश अच्छी बोल देता है, साउथ इंडियंस को देखिए आप, इंग्लिश अच्छी बोल देते हैं, हिंदी में पैदल होते हैं, उन्हें रहा है रही ही में ही फर्क नहीं आता। हम नॉर्थ इंडियंस हिंदी तो माय डियर घर से ही सीख लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में कभी कभी, सब नहीं बट वेरी फ्यू, they have slightly tighter hands in English. Okay, so now वो जस्ट आपको ये बताता है, और सिग्निफिकेंट है क्योंकि वैल्यू 0.05 से ज़्यादा है, तो सिग्निफिकेंस कोरिलेशन है, मतलब फर्जी नहीं है, कोरिलेशन सही निकली हुई है। ओके, नाउ द मार्क्स इन हिंदी एंड मार्क्स इन इंग्लिश, इसमें माय डियर आप सीधे आइए टू टेल स्टैटिस्टिक्स में, 0.737 विच इज ग्रेटर देन 0.05 विच स्टेट्स दैट, आ जाओ अपने उसी पे व्हाइट बोर्ड पे, which states that the performance in Hindi is equals to performance in English, क्योंकि वैल्यू 0.05 से ज्यादा है तो हम नल हाइपोथेसिस को ट्रू मानेंगे, यानी अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस गई भाड़ में, ठीक है, इसको काट दो, हमारी नल हाइपोथेसिस ही सही है। तो performance in Hindi is equals to performance in English. So basically my dear, once you'll get adapted to these things, you will get
you know, you will not need to formulate null and alternative hypothesis again and again. चलो एक बार चेकिंग भी कर लेते हैं. जब यहाँ तक आ ही गए हैं, माय डियर इंग्लिश के मार्क्स पलट दो सारे. 0 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 0. सबको 0 करो, सब फेल करो, सब बर्बाद हो गए इंग्लिश में. अब चेक करके देखो क्या वैल्यू आती है. एनालिसिस, कंपेयर मीन्स, पेड सैंपल टी टेस्ट एंड प्रेस ओके. बाकी सब तो सेट है ही. ये आ गया पेड सैंपल. एक का मीन है 55.10, दूसरे का 0 है, तो कोई कोरिलेशन आई नहीं, क्योंकि आ ही नहीं सकती, तो देयर इज 0 कोरिलेशन. अब देखो वैल्यू कितनी आ गई, 0.000. इट मींस that the performance in Hindi is not equals to the performance in English. And that's all for T-test, my dear. नेक्स्ट लेक्चर. तो आपको थोड़ा सा आइडिया मिल गया टी टेस्ट के बारे में. एफ टेस्ट मैंने आपको बता ही दिया है. एफ टेस्ट बेसिकली लेवेंस टेस्ट के अंदर यूज होता है. एफ टेस्ट आपको बताता है होमोजेनिटी ऑफ वेरिएंस. मींस दो चीजें बताता है वो. एक तो जो डेटा आपने लिया है, अगर एफ की वैल्यू 0.05 से ज्यादा है तो डेटा इज सिग्निफिकेंट, यानी कि जो डेटा आप ले रहे हो वो फर्जी डेटा नहीं है. दैट इज अ वैलिड डेटा. बेसिकली एफ टेस्ट टेल्स यू अबाउट द वैलिडिटी ऑफ द डेटा. So if the value of f test is greater than 0.05, then it tells you that the data is valid. If the value is less than 0.05, then the data is invalid. Statistically significant values नहीं है. आपको टेस्ट को वहीं पे रोकना पड़ेगा. आपका डेटा खराब है, आपको फील्ड में जाना पड़ेगा, आपको फिर से डेटा कलेक्ट करना पड़ेगा. अब बात करते हैं जी टेस्ट की और द जेड टेस्ट. जेड टेस्ट माय डियर यू कैन नॉट परफॉर्म इट इन एसपीएसएस. नाउ यू विल से सर टी टेस्ट की अगर हमने थ्योरी पढ़ी, अगर आप थ्योरी पढ़ोगे टी टेस्ट की, तो टी टेस्ट की जो थ्योरी होती है माय डियर, वो ये होती है कि 30 से स्मॉल सैंपल में, इफ द सैंपल साइज इज लेस देन 30, देन ओनली यू कैन अप्लाई टी टेस्ट. बट आप कहोगे कि सर मैंने कई थीसिस में देखा है लोग 500-500 लोगों का सैंपल लेते हैं और टी टेस्ट लगाते हैं, तो वो कैसे लगा देते हैं? I was searching for this answer, so I thought it to share with you. See, my dear, the design of SPSS is such that even if you will take the sample size more than 30, the t-test will not show any deviation in the results. That is why you cannot perform a z-test in SPSS. अगर आप सैंपल साइज को t के सैंपल साइज को 30 से ज्यादा बढ़ा दोगे तो ऑटोमेटिकली SPSS उसे एज अ z-test काउंट कर लेता है. लेकिन z-test के लिए कोई स्टैंडर्ड मेजर नहीं है. आप SPSS में चेक कर सकते हो, कहीं पे भी आपको z-test नहीं मिलेगा. z-test हो ही नहीं सकता. मेरे में हो सकता है, वो मैंने जुगाड़ करे हैं, वो अलग बात है, उस पर मत जाओ आप अभी, ठीक है. बट z-test एज सच SPSS में बिना उंगली करे नहीं होता. सो टी टेस्ट आप समझ गए हैं. फैक्टर एनालिसिस और एमआरए की मैं जल्दी वीडियो आपको भेज दूंगा. अभी फ्राइडे सैटरडे के लिए ये देखिए, समझ में आ जाता है. पेयर्ड सैंपल तो वेल एंड गुड, नहीं भी आता तो इट हार्डली मेक्स एनी डिफरेंस. सो थैंक यू वेरी मच एंड सी यू ऑन नेक्स्ट फ्राइडे.